Part 1 is Dhanurasana. Okay. For this you have to bend your knees, you have to hold your ankles. Okay, forehead down. अगर knee issue है तो little bit you can open your knees more, otherwise this way. अब आपको सांस भरते हुए you have to do this pose. Shoulders को नीचे नहीं करना, पीछे करना है and you have to lift this way. Breathe in, breathe out, hold, hold, hold and then come back. One more option. कई बार क्या होता है we are not able to hold the ankle, then you can use the belt this way on your ankle region, okay, and you will hold it, forehead down. Action will be same. अभी आप क्या करोगे, अपने पैर से इस बेल्ट को पुश करोगे and you will lift. You can do this way, you can do this way, you can do this way, okay, and then come back. This is Dhanurasana or bow pose. Now the next one is, ये आपका it was prone pose and then back bending. अब we'll be doing the same back bend, लेकिन अब घुटने के बल खड़े होके this way. इसमें कई बार क्या होता है कि जब हम नीज के ऊपर खड़े होते हैं तो it gives some pressure on your knee. अगर आपको कोई नी का इशू है then you will be taking a support under your knees this way. और अगर हेल्दी नीज भी है तो भी आप सपोर्ट ले लेंगे तो ये बेटर रहेगा. If you are a new practitioner, you will touch your toes like this. ठीक. Again you are lifting the pubic bone. You are arching. इतना कर पा रहे हैं तो just do this much only. ठीक. अगर बिल्कुल नए हैं then you can use the same bolster on your calf and this way you will reach. So this is your Ustrasana. Okay, simple way में हम आर्च भी कर रहे हैं, बैक पे स्ट्रेन भी नहीं आ रहा है. जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे. प्लीज अवॉइड दिस इन प्रेगनेंसी, अवॉइड दिस इन पीरियड्स. यू विल बी डूइंग दिस वे. वंस यू हैव प्रैक्टिस देन you can go arching and you can reach your heels. Don't lean back this way, open it and then you can relax your head and then gently come up. So this is Ustrasana. अगर ये difficult लग रहा है you can go with the bolster. Okay. Now another back bend. 4 options है आपके पास, उनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं. Option number 10 जो है सेतु बंधासन. Even you can do this in your period days. Now the Chakrasana. Okay. For this you have to lie down on your back this way and then important क्या है, how you are placing your fingers. Fingers आपकी नीचे की तरफ point होंगी, feet आपके parallel होंगे, मिला के नहीं रखना, ना बाहर रखना है. And from here you will press your heels very well, you will press your palms very well. Part 1 is keeping your crown on the floor and then part 2 you will lift your hip bones up, you will keep your thighs firm. पैरों को बाहर की तरफ नहीं खोलना, जो गैप है उसको आपको मेंटेन करके रखना. Part 1 is this and part 2 is this, open. Okay, don't take your knees out, this way, inhale, exhale. This is excellent pose for women's. And then आराम से you have to bring it down, crown and then here, then you will just relax. Don't immediately come up, just relax and then you will turn and come up. Okay, so this was Chakrasana. अगर चक्रासन नहीं होता है, नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें करना नहीं है. We have options how to do that. So this is very important pose, Setu Bandhasan. The position is same. Okay, if you touch here
you will feel two bony part here. This is your hip bones. ठीक, आपको हाथ को ऐसे साइड में रखना है. No need to grab the ankles and then you are lifting. The simple way you can do this way, or we have the same belt. You can keep it under your ankles and you can hold. ठीक. So I am showing you the simpler way. आप just हाथ ऐसे रखो and with inhale you are lifting your hip bones up. You are lifting your hip bones up and roll your shoulders down and lift up. Even you can grab the yoga mat and this way. Simple way of doing Setu Bandhasan, and during periods you have to keep your abdomen very soft. Focus on your inhalation, exhalation, keep your thighs firm and then gently drop your body down. आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं. You can do in dynamic way. Inhale is up, exhale is down, or you can go inhale and you can stay here. एक बार आप pose अच्छे से करने लग जाएं, you can interlock your fingers and you can roll your shoulders more in and you can stay like this for 10 to 15 seconds and then gently lower your body down and turn right and come up. So back bend करने से क्या होता है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं, मेनोपॉज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इन्वर्जन्स एंड बैक बेंड इन एनी फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट वन इज शीर्षासन एंड सर्वांगासन. शीर्षासन अगर आपसे नहीं होता है तो यू हैव टू डू द अधोमुख श्वानासन, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में सेकंड पोज है. आप अधोमुख श्वानासन कर सकते हैं. ठीक, कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, तब आप इसको वॉल के पास जाके कर सकते हैं. आई विल शो यू बोथ वेज कि आप कैसे कर सकते हैं. ठीक, शीर्षासन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने हेड के नीचे एक सपोर्ट लगाना चाहिए. आप ऐसे फ्लैट फ्लोर पर नहीं करेंगे. ठीक, यू हैव टू टेक सम सपोर्ट. सो हियर आई एम यूजिंग माय योगा मैट एंड आई एम फोल्डिंग इट दिस वे, और मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी इस तरीके से, एंड देन आई एम प्लेसिंग इट हियर. जिस भी सरफेस पे करें ना, दैट शुड बी फ्लैट. अब आपके हाथों की पोजीशन यू हैव टू मेजर योर शोल्डर. सो ये आपके यू हैव टू मेजर योर शोल्डर एंड देन यू हैव टू इंटरलॉक योर फिंगर्स. 70% जो वेट है वो आपका फोर आर्म्स पे आएगा. ओनली 30% विल बी ऑन योर क्राउन. उसमें भी हम लगातार आर्म्स को प्रेस करते रहेंगे ताकि बॉडी ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ नहीं जाए. सो हियर इट इज़. मैं अपने शोल्डर्स को मेजर कर रही हूँ, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया है, छोटी उंगली फ्लोर पर है, एंड दिस पार्ट, ये तालू वाला पार्ट आप रखेंगे यहाँ. ओके, यू आर नॉट टेंसिंग योर शोल्डर्स, आप बल्कि गर्दन को और कंधों को दूर कर रहे हैं एक दूसरे से. नाउ यू हैव टू गो फॉर पार्ट 1 which is lifting your knees up, walking, and then first part is this. Stay here, stay. Okay, this is also okay, इतना आप कर पाते हैं तो. And then you will straighten the leg, straight. Okay, toes को आप point भी कर सकते हैं, flex भी कर सकते हैं, this way. सेम आप फील करोगे जैसे आप खड़े होते हो, सेम इन हेड स्टैंड. एंड देन gently you will take your one leg down followed by the other leg and you will relax in child pose this way.
You have to avoid in period days, you have to avoid in pregnancy. Pregnancy में जो पहले से बहुत एक्टिव हैं, they can do the rope शीर्षासन, but with the guidance of the yoga teacher. अगर आपकी आँखों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तब भी you will avoid it. ब्लड प्रेशर है, you have to do rope शीर्षासन, ये नहीं. So I am just showing you this is wall, कि वॉल के साथ आप कैसे कर सकते हो. कभी भी आपको जंप या हॉप नहीं करना है. शीर्षासन करने के लिए पहले आपको वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख श्वानासन ज़रूर करना है. सो सेम सेटअप आई एम टेकिंग अगेंस्ट द वॉल. ठीक, मेजर किया, फिंगर्स को इंटरलॉक किया, अच्छे से हाथों को प्लांट किया, एंड देन योर क्राउन एरिया, lift your buttocks up, walk, and then take your one leg up followed by the other, and you have to press your heels very well. Okay, and this way. Focus on inhalation and exhalation. पैरों को ढीला नहीं छोड़ना, आप स्ट्रेच करके रखो अच्छे से. इनर एंड आउटर लेग. ओके, चेस्ट को आगे पॉप नहीं करना है. दिस वे. एंड देन अगर बिल्कुल नहीं है, you will just come down immediately. Others can stay for 30 to 1 minute, and then right leg niche, and then other down, and then you will rest like this. Okay, rest like this. Body को ढीला छोड़ देंगे. अधोमुखा वीरासन. या तो आप ऐसे आगे झुक कर सकते हो या एकदम से आप खड़े हो जाना, but this is better. And then you will come up. Okay, शीर्षासन में क्या होता है, पूरा जो ब्लड है आपके वो ये क्राउन वाले एरिया पर आता है. ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है. इसका काउंटर पोज है आपका सर्वांगासन या शोल्डर स्टैंड. ओके, इसको बेटर रहेगा कि आप शीर्षासन के बाद ज़रूर करें. सर्वांगासन भी. सारे इन्वर्टेड पोजेस आपके पीरियड डेज में नहीं करने हैं आपको, एंड प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करने हैं. सो यू विल लाई डाउन दिस वे. ओके, सो फ्रॉम हियर you will lift your both legs up. Okay, you will lift your both legs up, and then you will gently lift your buttocks up, और अंगूठा और ये बाकी चारों उंगलियां this way. You will take it, and then will keep your legs straight. Keep your legs straight. Sarvangasana. Breathe in and breathe out. ये इनफर्टिलिटी के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोज. एंड देन हाउ टू कम बैक, यू कैन गो इनटू हलासन एंड देन gently come back, and this way you can do. Okay, so this is how you can do Sarvangasan in the center. Same pose you can achieve against the wall. अगर आप उठा नहीं पा रहे हैं, then how you will go? So you will go near the wall this way, and then you will take your leg up. You will take your leg up. So this is your starting position. And okay, I'll do this way. So, आपको पैर खोलने हैं, and you will press your heel very well, and then you will lift your hips up. Lift your hips up. You will walk up. You will walk up, and then you can take your one leg, then come back, other leg, and then come back, and then you can rest down. तो इस तरीके से आप वॉल की हेल्प से भी you can do this pose. Okay, so these were the inversions. इसके n number of benefits हैं, not only for the female issues or gynae issues. You should be doing this every day. शीर्षासन नहीं कर पा रहे, प्लीज़ डू द अधोमुख श्वानासन. सर्वांगासन सेंटर में नहीं कर पा रहे,
यू कैन डू दिस हेयर. और जिनको नेक इशू का कुछ प्रॉब्लम है, दे हैव टू सपोर्ट देयर नेक, ठीक है, शोल्डर के नीचे. नाउ बद्ध कोणासन एंड सुप्त बद्ध कोणासन, इसको आप प्रेगनेंसी में, पीरियड डेज में, एनी टाइम यू कैन डू. इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी होनी चाहिए कम से कम 3 से 5 मिनट. 3 से 5 मिनट आप इसको करेंगे. सो आई विल शो यू फर्स्ट द बद्ध कोणासन, या जिसको कि स्वामी जी ने बटरफ्लाई के नाम से ज़्यादा फेमस कर दिया है, बट द ट्रेडिशनल नेम इज़ बद्ध कोणासन और भद्रासन. यू हैव टू जॉइन योर फीट दिस वे. यू विल इंटरलॉक योर फिंगर्स. कभी भी आप नी पर फोर्स नहीं करोगे, आपको ये इनर थाइस को स्ट्रेच करना है. ओके, इफ आई शो यू फ्रॉम साइडवेज, सो आपकी बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, घुटने ऊपर ऐसे नहीं उठे हुए होने चाहिए. सो द बद्ध कोणासन इज दिस, थाइज डाउन, चेस्ट अप, कंधे नीचे, एंड दिस इज योर बद्ध कोणासन. ठीक. सो अगेन आई एम शोइंग यू फ्रॉम द फ्रंट. गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए दिस इज द, you can say just like a panacea it works. Shoulders back and down, looking straight. एक बार आपने पोज कर लिया, ठीक है, उसके बाद where your mind is, बॉडी, माइंड और ब्रेथ को आपस में वीव करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चेस्ट अप, यू हैव टू इनहेल, एक्सहेल, फोकस करो. यू कैन क्लोज योर आइज ऑल्सो. आप अपने ग्रॉइन एरिया, इनर थाइस, क्योंकि माइंड ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. यू हैव टू गिव योर माइंड अ वर्क. प्लीज फोकस हियर. देखो व्हाट आर द बॉडी सेंसेशंस, एंड यू हैव टू डू दिस वे. दिस इज बद्ध कोणासन. यू शुड प्रैक्टिस दिस. बस इसको कब नहीं करना है, अगर आपको यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तब आपको नहीं करना है. एंड द नेक्स्ट पोज इज हाईली इफेक्टिव पोज. It is the Baddha Konasana only, but in supine position. For this you need some props. I am just showing you. और अगर इसमें आपका हाथ नहीं ग्रिप हो रहा है ना, you can use the belt और दुपट्टा to achieve this, ताकि ये चीज़ आपकी खुले, ये चीज़ आपकी ओपन हो. Okay. Now I am showing you the Supta Baddha Konasana. बहुत सारे पेशेंट्स को इससे हेल्प मिली है इन infertility, to regular their menstrual cycle. One bolster in vertical position this way, और ये आपके हेड के सपोर्ट के लिए this. Okay, and how you have to go, you will sit here, in Baddha Konasana position. आप बिल्कुल चिपके नहीं है, there is a gap. Okay, and then यू आर लाइंग डाउन दिस वे. आप धीरे धीरे ऐसे लेट रहे हैं, स्पाइन को इस बोल्स्टर के ऊपर रख रहे हैं इस तरीके से, और सिर के नीचे ये सपोर्ट है. ठीक. आपको अपना एब्डोमेन, ये इसको टाइट नहीं करना है. हम जो महिलाएं हैं ज़्यादातर इस हिस्से को टाइट या टेंस करके रखते हैं, उसको आपको खोल के रखना है. अगर आपको कोई नी इशू है, और अगर नी इशू नहीं भी है, आप पैरों को ऐसे खोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पेन हो रहा है, एट दैट टाइम यू कैन टेक सम सपोर्ट अंडर योर नीज. कोई 2 पिलो आप लगा सकते हैं. ठीक. शोल्डर को ओपन करना है, आर्म्स शुड बी दिस साइड एंड यू विल बी रेस्टिंग हियर. इस पोज को कम से कम 10 से 12 मिनट प्लीज़ रोज़ करिए. ठीक. कई लोगों को हो सकता है कि उनको लगे कि हमें कमर पे दर्द हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो लोग कमर के नीचे भी सपोर्ट लगा के रखेंगे, और देन यू विल बी डूइंग. और बहुत पतला सा कोई तकिया आप कमर के नीचे लगा सकते हैं, एंड यू कैन गो लाइक दिस. सुप्त बद्ध कोणासन. फेस को बहुत सॉफ्ट रखना है, चेहरे की मसल्स को टेंस नहीं करना, स्पेशली योर लोअर जॉ, उसको टेंस नहीं करना है. एंड यू हैव टू रिलैक्स योर थ्रोट एरिया. यहीं पर आपकी थायराइड ग्लैंड है, जो कि दूसरी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए.
कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक। और बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड का इम्बैलेंस वेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो यू हैव टू कीप दिस एरिया वेरी सॉफ्ट एंड देन after staying in this pose for minimum 5 to 10 minutes, then you will turn to your right side and gently you will come up. Okay, now after this, the last or the most effective Vipreet Karni Mudra, and how you have to relax yourself. शवासन और विपरीत करनी मुद्रा, जिस विपरीत करनी मुद्रा जिसमें आप अपने पैरों को ऊपर करते हैं और बॉडी नीचे रहती है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर अधोमुख श्वानासन। अगर आप इन्वर्टेड पोजेज नहीं कर सकते, आप दीवार की मदद से इस पोज को अच्छे से कर सकते हैं। ये आपके सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को एड्रेस करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है, और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सो दिस इज़ द वेरी इफ़ेक्टिव आसना यू शुड बी डूइंग एवरी डे, ठीक। अदर्स इसके क्या बेनिफिट हैं? वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, पैरों में दर्द रहता है, सूजन है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, यू शुड बी डूइंग विपरीत करनी मुद्रा। आई एम शोइंग यू इन 2 वेज। ओके, एक में आपने देखा होगा जो सेंटर में फोटो है उसमें हिप्स के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, यू विल जस्ट गो नियर द वॉल, आप ऐसे साइड में हैं एंड यू आर जस्ट टेकिंग द बोथ लेग्स अप this way and the arms by your side. So leg आपके 90 डिग्री पोजीशन में है, एब्डोमेन को आपने सॉफ्ट रखा है एंड बटक्स आर टचिंग टू द फ्लोर, और हाथ आपके साइड में है, ठीक। यू कैन डू दिस वे, ओवर द हेड नहीं ले जाना, नहीं तो फिर रिलैक्सेशन नहीं आएगा, इट शुड बी बिलो द शोल्डर। सो वन वे ऑफ डूइंग विपरीत करनी मुद्रा इज दिस। अदर वे, अगर आप और ज़्यादा इफेक्ट लाना चाहते हैं, तो while you are doing this pose, you will just lift and you will place this bolster under your buttocks this way. Now your अब आपकी जो buttocks हैं वो इस bolster पर रेस्ट कर रहे हैं और हाथ साइड में है। इससे क्या होता है, एक 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। पूरे दिन में हम सबसे ज़्यादा खड़े ही होते हैं और लेग्स पे बहुत प्रेशर आता है। इन दिस पोज आपके ब्लड, पैरों का जो ब्लड है वो धीरे धीरे आपके पेल्विक रीजन पर कलेक्ट होता है, यहाँ से इट ओवरफ्लोज, इट गोज़ टू योर हार्ट एंड देन इट गोज़ टू योर बैक ऑफ द ब्रेन। इन सारे प्रोसेस में आपकी जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होती हैं इस वे, और हार्ट को बिना कोई मेहनत किए हुए द ब्लड फ्लोज हियर। सो दिस इज़ द वे। इसके लिए आपको कम से कम इसको 10 मिनट तो रोज़ करना है। और कई बार क्या होता है, कई लोगों को थोड़ा नमनेस हो जाती है कि हम इतनी देर पैर ऊपर नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टे से लाइक 2 से 3 मिनट तक आप ऐसे रहें, फिर आप बद्धकोणासन में आ सकते हैं। यू कैन स्टे लाइक दिस। बद्धकोण मुश्किल हो रहा है, यू कैन क्रॉस योर लेग दिस वे। क्रॉस लेग कर रहे हो तो यू हैव टू डू फ्रॉम बोथ साइड लाइक दिस, एंड उसके बाद you can do this way also. Okay, so there are 3-4 options for staying in this pose. 1, straight leg. 2, 3, in a butterfly pose. 4, simple cross leg. Okay, then how to come back, you will just slide back and then turn to right side and take support and you can come up. विपरीत करनी मुद्रा, इसको आप करना शुरू करिए। इसका बहुत ज़्यादा लाभ है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के इश्यूज़ के लिए, ठीक। एंड देन लास्ट में आपको शवासन करना है। शवासन का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से सीधा लेटे और आप रिलैक्स हो गए। शवासन को भी करने का एक तरीका है। आई विल शो यू हाउ टू गो इनटू द शवासन। अगेन, अगर आपको कोई नेक इशू है तो एक बहुत पतला सा आप तकिया लेंगे एंड यू विल कीप इट लाइक दिस। ये सिर्फ गर्दन के लिए है, कंधे इस पे नहीं रखेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर यू आर गोइंग,
आप ऐसे लेट जाएंगे धीरे धीरे। अभी अपर पार्ट पे वर्क कर रहे हैं। ये सपोर्ट आपके गर्दन के लिए है, कंधे नीचे हैं। देन वन बाय वन रबिंग योर राइट लेग हील दिस वे, लेफ्ट लेग हील दिस वे। आप राइट पैर को राइट साइड, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड आप ऐसे लिटा देंगे, ठीक। एंड यू विल रिलैक्स, आंखें बंद। अब अगर हम ये पिलो नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा, अगर आपको नेक इशू नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर नेक इशू है तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पीछे कई लोगों के ना फैट इकट्ठा हो जाता है तो उनकी चिन ऐसे ऊपर जाती है। अगर इस पोजीशन में आप रिलैक्सेशन करेंगे तो शवासन कभी भी नहीं होगा, आप बहुत और ज़्यादा हाइपर एक्टिव और एंजाइटी वाले मोड में चले जाएंगे। दैट्स वाई यू शुड बी टेकिंग अ वेरी थिन सपोर्ट दिस वे, ओके। और बॉडी को बहुत रिलैक्स रखना है, फिंगर्स को नेचुरली कर्ल रखना है, ना मुट्ठियाँ बंद करनी है ना एकदम से आपको सीधा रखना है। सो दिस वे यू आर रेस्टिंग। आँखों को बहुत सॉफ्ट रखना है। और लेटते के बाद यू हैव टू स्कैन योर होल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड टो टू हेड। ऐसा नहीं है लेट गए अब मन कहीं और जा रहा है, बॉडी कहीं और है। आपको अपनी पूरी बॉडी पर फोकस करना है। एंड आफ्टर 3 to 4 मिनट्स, जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, जिनको बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, दे शुड बी डूइंग दिस एवरी डे। एंड देन turn to right side with support, you are inhaling and coming up, okay. So these are the few very important poses you should be practicing every day. Inverted poses आपको avoid करने हैं in pregnancy and in your period cycles। बाकी सभी I already told you कि कैसे modify करके करने हैं। Now we'll talk about 3 important pranayam, which is, one is नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई। उज्जाई जो प्राणायाम है वो आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्लीप एपिनिया की प्रॉब्लम है, या वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, या कई लोगों में स्पीच की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है और स्ट्रेस को कम करता है। तो हाउ टू डू उज्जाई प्राणायाम, ये आपका ग्लॉटिस वाला एरिया होता है। आपको इस ग्लॉटिस वाले एरिया को टाइट करना है, ठीक। और इसको टाइट करने के बाद यू विल इनहेल एज इफ़ यू आर इनहेलिंग फ्रॉम योर थ्रोट। आपको एयर का फ्रिक्शन गले वाले हिस्से पर महसूस होगा। सो फोकस हेयर। कई बार ये चीज़ समझ में नहीं आती लोगों को कि हाउ टू डू, इसीलिए कई योगा स्कूल्स में इसको आवाज़ के साथ भी कराया जाता है। तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि आवाज़ के साथ आपको कैसे करना है। तो साउंड विल बी लाइक दिस। ऐसा करते हुए आपको सांस को भरते जाना है। तो बोथ वेज आर ओके। गले पर ध्यान देंगे। इनहेल, ब्रेथ को होल्ड करोगे आप और चिन को हल्का सा ड्रॉप करोगे। जितनी देर तक बिना सांस लिए, बिना सांस को बाहर खाली किए आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो, यू विल बी होल्डिंग इट। एंड चिन को लिफ्ट करोगे, यू विल एक्सेल कंप्लीटली आउट। जिनको थायराइड इशू है, आप मेडिसिन लेते हैं, तो भी आप इसको, जैसे फर्स्ट मॉर्निंग में आप मेडिसिन लेते हैं, यू शुड बी डूइंग दिस उज्जाई प्राणायाम, ताकि और जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ना हो, ठीक। तो कितनी देर करना है, यू कैन डू इट फॉर 3 टाइम्स, 3 रेपिटेशंस और 5 रेपिटेशंस, इसको कर सकते हैं। बच्चों में ये कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम प्राणायाम, सिंपल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ये आपकी बॉडी में 72,000 नाड़ीज होती हैं, चैनल्स होते हैं, उसको डिटॉक्स करता है। और आपकी बॉडी में जो 5 इम्पॉर्टेंट प्राण हैं,
उसको बैलेंस करता है। एंड उसमें भी दो इम्पॉर्टेंट है, प्राणा और अपाना, ठीक। सो हाउ टू डू दिस? विद योर राइट हैंड यू विल बेंड योर, आप अपनी पहली दो उंगलियों को बेंड करोगे, अंगूठा और रिंग फिंगर यू विल यूज इट, ओके, दिस वे। राइट थंब ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल, ठीक, चिन को सेंटर में रखेंगे। नाउ फ्रॉम हेयर यू विल इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, आप बाई नासिका से श्वास भरेंगे, and then you will exhale from right, again you will inhale from the right nostril and exhale from the left. ये सिंपल टेक्निक है, आपने लेफ्ट से सांस लिया, राइट पे खाली किया, फिर राइट से लिया और लेफ्ट पे खाली किया। अब कुछ महीने आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको ये अच्छे से करना आ जाए देन यू कैन होल्ड द ब्रेथ इनसाइड, तब आप अंतः कुंभक लगा सकते हैं, यानी कि सांस को अंदर भर के रोकना। द रेशो विल बी 1-4-2-2। अगर नहीं रेशो समझ में आती तो व्हाट यू विल जस्ट डू, यू विल इनहेल, मान लीजिए आप 4 की काउंट में इनहेल करते हैं, ठीक है, तो आपको 16 काउंट्स तक आपको ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखना है, देन 8 काउंट में एक्सेल एंड अगेन आपको 8 काउंट में बाहर ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। सो दिस इज नाड़ी शुद्धि विद दिस रेशो। ये नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन जस्ट सिंपली डू द ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, उसका भी बेनिफिट है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई कम या ज़्यादा है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई जस्ट शेयर्ड कि नाड़ी शुद्धि में क्या करना है। करना कितनी देर है, आप इसको 3 से 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तब आप इसके 9 साइकिल्स, एक साइकिल में क्या होगा, लेफ़्ट से लिया राइट से खाली, और राइट से लिया और लेफ़्ट से खाली, ये आपका एक साइकिल हो गया, और आप इस तरीके से 9 साइकिल्स कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए एंड स्पेशली अनुलोम विलोम के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे की फास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ द लास्ट प्राणायाम इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है, इसके भी 2-3 तरीके हैं। द थिंग आई एम शोइंग हियर इट इज़ विद षणमुखी मुद्रा। पहली 2 उंगलियां ऐसे आपके आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर आपके आइज़ के कॉर्नर पर, रिंग फिंगर आपके नोज़ के कॉर्नर पर, बट यू आर नॉट प्रेसिंग द नोज़, ओके। और ये छोटी उंगली आपके गाल पर, अंगूठों से ये कानों के फ्लैप्स को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, एंड दिस इज़ योर हैंड पोजिशन। पार्ट 2 इज़ टेकिंग योर टंग। आपके जो टंग है उसको आप अपर पैलेट पे टच करोगे और यू जस्ट टेक इट बैक, या तो आप रोल करके पीछे ले जाओ या अपर पैलेट को ऊपर टच करो। सो एंड देन you will inhale, and while exhaling you will produce the humming sound. Okay, this way you can do for 3 times or 5 times, or abhi to I just opened my eyes, after that you will just sit relaxed, keep your eyes closed. And then you can do Om chanting, and you can, with Shanti mantra, you can end your practice. So this is your main important practice module for gynecological disorders, and उसमें भी we have focused more on menstrual disorders. तो इस तरीके से प्रैक्टिस से, और हमें अपने फूड इंटेक पर भी ध्यान देना पड़ेगा. सो यू हैव टू ईट more fibers and protein
लेस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, यू हैव टू टेक योर स्लीप साइकिल शुड बी प्रॉपर, उस पर ध्यान दीजिए। और जितना हो सके आप जो शुगर, जो डायरेक्ट शुगर है वो मत लीजिए, फ्रूट्स वगैरह में जो शुगर है उसको ज़रूर लीजिए। यू कैन हैव फ्लेक्सीड इन योर फूड, और फ्लेक्सीड को आप भून कर रख सकते हैं, एंड यू कैन टेक इट दैट वे। और जो इम्पोर्टेंट आपके नट्स हैं उसको लीजिए, अखरोट वगैरह। और जितना आप नेचुरल चीज़ें खाएंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन और सारे डाइजेशन इश्यूज ना हो, जो कि आपकी प्रॉब्लम को और एग्रीवेट ना कर पाएँ। और योग निद्रा और लॉन्ग शवासन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके फिज़िकल, मेंटल और इवन सबकॉन्शियस माइंड पर भी अगर कोई स्ट्रेस है वो भी आपका रिलैक्स हो जाए। सो विद दिस, थैंक यू एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हरे कृष्णा।